So guys, topic for the today is dishonest seller. This is the most difficult or most overrated topic in the CAT quant section because some people feel that it would be quite difficult to do such type of questions. Yes, it is, but if you get a proper method that how you should approach these types of questions, then it seems very easy task to do such type of questions. So today we will talk about these types of question basically where you are supposed to give 1000 gram and you are giving 5% less and then raising price by 20% and some other things which we will see accordingly. So the first we have to understand that how to approach such type of questions. So if I say that I am selling 900 gram instead of 1000 gram, I should sell 1000 gram but I am selling 900 gram. I am making profit. Obviously you all know that I am making profit. How? See, I am supposed to give more, I am giving less, so I am making profit. The first thing we have to find that either we are making profit or loss. In this case we are making profit. Okay, then we have to put these two values, one in numerator and one in denominator. So we are making profit, our answers should be greater than 1. जो भी हमारा final answer होगा that should be greater than 1. And if we are making loss, this is in case of profit. And in case of loss, our final answer would be less than 1. So suppose I am getting final answer as 1.2. Just एक बार जो मैं बोल रहा हूँ उतना समझो. I am getting answer as 1.2. This means I am invested 1. You can think like that. मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया और मुझे 1.2 रुपीज़ मिले. तो 0.2 by 1 into 100. I am earning 20% profit. Okay. And if I get 0.8, so I'm getting loss of 0.2 on 1 rupees. So there is 20% loss. So इसमें इन केस ऑफ प्रॉफिट 1 से कितना ज़्यादा है उसको इंटू 100 कर दो. यहाँ पे 0.2 ज़्यादा है तो 0.2 इंटू 100 इज द आंसर. एंड हेयर 1 से कितना कम है, यहाँ से 1 से 0.2 कम है तो 0.2 इंटू 100 करेंगे तो दैट वुड बी 20% ऑफ लॉस. आई होप इतना कुछ कुछ तो समझ आया होगा. ठीक है, तो बैक टू बेसिक्स. अब लाइक इन दिस क्वेश्चन वी हैव फाइंड दैट there would be profit because we are selling less than what we are supposed to sell. So जब हमारा प्रॉफिट होता है तो ऑब्वियसली हमारा आंसर 1 से बड़ा आना चाहिए. ठीक है, ये हमने देख लिया. ठीक है, तो 1 से बड़ा. अब 1000 और 9000 को 1 से बड़ा करना है तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. ठीक है, प्रॉफिट में. इन केस ऑफ प्रॉफिट answer should be greater than 1, which implies that numerator is greater than denominator. In loss, answer is less than 1, which implies that numerator is less than denominator. ये दो बातें अगर याद है तो all questions would be very easy. So इस क्वेश्चन में देखते हैं प्रॉफिट आएगा तो we would put 1000 by 900 और let's say 10 by 9. ठीक है, अब 10 by 9 मतलब 1 से बड़ा आएगा, लेकिन वो देखना है 1 से कितना बड़ा है तो -1 अगर करके देखेंगे तो वी वुड गेट 10 - 9 by 9. दैट इज 1 by 9. 1 by 9 यू शुड ऑल नो दैट इज 11.11% का प्रॉफिट. और यू कैन सी डायरेक्टली 9 तो यहाँ पे एक इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं 9 + 1 by 9 है यहाँ पे. 9 तो 9 का ये तो कोस्ट ही कवर कर रहा है तो एक्सेस है 1 तो 1 by 9 दैट इज 11.11% प्रॉफिट. कुछ कुछ तो समझ आ रहा होगा. अब नेक्स्ट चीज होती है कि इफ आई से यू दैट आई एम सेलिंग 800 grams instead of 1000 gram and raised the CP by 20%.
तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये, दिस इज वन कंडीशन एंड दिस इज सेकेंड कंडीशन। तो व्हेन वी गो फॉर फर्स्ट कंडीशन, तो यहाँ पे हमने 800 ग्राम दिया है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो हेयर वी आर हैविंग प्रॉफिट, और व्हाट इज हैपनिंग हेयर, हमने सीपी को रेज किया 20% से, हमारा सेलिंग प्राइस 20% ज़्यादा है सीपी से, हेयर इज वी आर ऑल्सो हैविंग प्रॉफिट। तो दोनों में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा। पहली कंडीशन में क्या है, न्यूमरेटर आएगा 1000 बाय 800, और अगर दूसरी कंडीशन देखें तो इसमें क्या आएगा, इसमें आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, सीपी को 100 लेंगे तो एसपी आ जाएगा 120, तो हम क्या लिखेंगे 120 बाय 100। बट दिस बोथ कंडीशन आर ए पार्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन, ये सब एक ही प्रोडक्ट पे एक ही ट्रांजैक्शन पे हो रहा है। तो when we have when we have to club everything into a single transaction, we do multiply, there would be multiplier effect, ठीक है। तो what we will do, 1000 by 800 into 120 by 100, and this would be our final answer। 2 से कटेगा तो 5, 4, 30, 5, 20, and I would get 1.5. 1.5 means deviation of 0.5, and this would be profit because it is greater than 1. So first condition is answer is greater than 1, which means we have profit. Deviation is 1.5 minus 1 is equal to 0.5. So final answer 0.5 into 100 is equal to 50% profit on whole transaction. Same will be for loss. लॉस में क्या होगा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो 1 second guys, okay, so it has stopped, yeah, so now we will work on some questions कि क्वेश्चंस में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। Okay, so guys, you have to listen the question carefully. The first question is, a shopkeeper purchased 20% extra quantity than indicated. So the first condition is 20% extra quantity purchased, extra purchased. And in the same question it is said, and sells 20% less than indicated. 20% less sold. Find the percentage profit if he sells the product at the cost price. Selling at CP. Okay, so we have 3 conditions in one question. उसने 20% एक्स्ट्रा परचेज किया है, मतलब दिस इज प्रॉफिट। 20% लेस सोल्ड किया है, तुमको 100 रुपये किसी को देने थे लेकिन तुमने 80 ही दिए हैं, तो दिस इज ऑल्सो प्रॉफिट। दिस इज नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 ही आएगा, ठीक है। इसको पूरे एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो, और यू कैन इग्नोर दिस थिंग ऑल्सो, ठीक है। अब पहली कंडीशन में क्या है कि 20% एक्स्ट्रा परचेज किया है, मुझे 100 रुपये 100 का परचेज करना था लेकिन मुझे 120 का परचेज हो गया, तो यहाँ पे फैक्टर क्या आएगा, 120 बाय 100। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि मुझे 100 सोल्ड करना था, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, इसको इग्नोर कर सकते हैं। 100 सोल्ड करना था लेकिन मैंने 80 ही सोल्ड किया है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा 100 बाय 80। अब इसको कंबाइन करेंगे तो 120 बाय 100 इंटू 100
बाय 80, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 4 2 3, तो our answer is 1.5. So you have got to know 0.5 into 100 is equal to 50% profit. So this is the final answer we have. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A shopkeeper sells rice at 20 rupees kg that he purchased in 16 rupees kg. Sold 20 per kg, purchased 16 per kg, and he is giving only 800 grams of rice instead of 1 kg. 800 instead of 1 kg. Find the actual percentage profit. देखो, उसने 16 में खरीदा, 20 में बेचा, तो दिस इज प्रॉफिट कंडीशन. ही गिव्स 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg. कम दिया है तो यहाँ पे प्रॉफिट. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आएगा 20/16 और यहाँ पे आ जाएगा 1000/80/800 और वी कैन से 5/4. So 20/16 into 5/4, that would be 25/16. 25/16 और you can say 9/16. अगर डायरेक्ट फाइंड करना है, अगर तुम्हें 9/16 का पता है रेशियो, तो दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू. सो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 9/16 into 100, इट वुड गिव अस 56.25% ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, so let's see our next question. Anil sells sugar at cost price but uses false weight, thus gain 20% profit. ठीक है, find how many grams sugar he is giving in 1 kg. Okay, तो अभी इन्होंने रिवर्स क्वेश्चन पूछा है. देखो क्या है कि उसने कुछ फॉल्स वेट यूज किया. फॉल्स वेट मतलब तुम्हें कुछ देना चाहिए था लेकिन तुमने ऐसा वेट चूज किया जो कि मीटर पे तो शो कर रहा है 1 kg लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी कुछ और ही है. तो फॉल्स वेट है, मतलब उसने दिया, ही इज सपोज टू गिव 1 kg बट ही गिव समथिंग लोअर देन दैट, दैट्स व्हाई ही मेड द प्रॉफिट. सो उसको इसमें कितना प्रॉफिट हुआ? 20% का. ओवरऑल प्रॉफिट 20% का हुआ है. तो हमें बताना है कि हाउ मच ही एक्चुअली गेव. उसने कितना दिया एक्चुअली था? 1 kg तो नहीं दिया. तो अब देखे जो उसने दिया है, मान लो लेट से ही गेव x ग्राम एंड ही इज सपोज टू गिव 1000 ग्राम. तो इस ट्रांजैक्शन में मे भी लॉस हो सकता है, मे भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है और 1 सिंगल ट्रांजैक्शन है तो इसमें भी प्रॉफिट होना चाहिए. इसमें प्रॉफिट होगा तो x ग्राम शुड बी लेस और इसका फैक्टर क्या आएगा? 1000/x. अब 20% प्रॉफिट को हम क्या लिखेंगे? जो हमें आंसर आना चाहिए, सपोज कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए अगर 20% प्रॉफिट है? 20/100 मतलब 0.2 और इसमें +1 करेंगे तो ओवरऑल हमारा आंसर आना चाहिए 1.2 और वी कैन से 12/10. ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो वी वुड गेट 6/5. ठीक है, सो x वुड बी 5000/6 और वी कैन से 2500/3, दैट वुड बी 833.33 ग्राम्स. इतना एक्चुअली उसने दिया है. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. A shopkeeper claims that he is selling sugar at 20 kg which costs him rupees 25 kg. But he is giving 800 grams instead of 1 kg. ठीक है, purchased 25 per kg, sold 20 per kg, 800 instead of 1000.
तो यहाँ तो लॉस हो रहा है इस बार, क्योंकि इसने ज़्यादा में परचेज किया, कम में सोल्ड किया, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर प्रॉफिट वाले का आ जाएगा 1000/800, 20 से 20 कैंसिल, 5/4, और इसका आ जाएगा 20/25 बिकॉज इट इज ए लॉस। सो 5 से कैंसिल होगा 4/5। सो इफ यू मल्टीप्लाई 4/5 इंटू 5/4, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1। सो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, और यू कैन से 0% प्रॉफिट। A shopkeeper marks up the price of rice by 20%. Markup by 20%. And gives a discount of 10%. Discount of 10%. And selling 800 grams instead of 1000. 800 instead of 1000. What is his net percentage profit? अब उसने मार्कअप बाय 20% किया है, तो ये तो प्रॉफिट है। डिस्काउंट दिया कोई चीज पे तो लॉस हो गया एक टाइप का, ठीक है। 800 सेल किया इंस्टेड ऑफ 1000, तो ये प्रॉफिट है। इसमें अगर मार्कअप में हम देखें कि 100 वाली चीज उसने 120 में बेच दी है, तो इसका अगर रेशियो आएगा 120/100, और इसमें लॉस है, मतलब 100 वाली चीज अगर वो 90 में बेच रहा है तो इसमें लॉस में आएगा 90/100, और इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो 1000/800 विच वी हैव सीन 5/4। इसको सिंप्लीफाई यहीं भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहां लिख के कर लेते। चलो 120/100 इंटू 90/100 इंटू 5/4। 5 से ये 20, 20 से ये 6, 0 से 0, 2 से 3, एंड दिस इज 5। तो हमारे पास आ गया 27/20। तो 7/20 इंटू 100, 35% का प्रॉफिट। सो आई होप आपको कंसेप्ट सारा समझ आया होगा। बेसिक क्वेश्चंस यही हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी past year questions based on these topics. And if you have any doubts, if you have any questions, put it in the comment section. I will take all these things into our next video. Thanks and happy learning.